Yes, good morning, everyone. So first we Good have, morning, sir. yes, first we have 12D, Vanshika. Then we have Tarun Jot and Priyansh. So let us wait for the others to join in. And our today's topic is the scatter plot. That is the last topic from the unit number 1. And the unit number 1 is the biggest unit that we have. So please, during the holidays also, I will give you the practicals based on these topics that we have covered. So you can try it out during your holidays also. And I will just show you the syllabus also so that you have a look at the syllabus also. So this is the syllabus. And this is the bifurcation of marks. As you can see that the unit number 1 that we are going through, that is having the biggest weightage, 30 marks. Then we will switch to the SQL part. And then is introduction to computer networks, 7 marks. Societal impacts of 8 marks. And then is the 30 marks practical. So yes. So you can have a look at the syllabus. आप देखो ये unit number 1 is the biggest unit. You have just see here. Data handling using Pandas 1, data handling using Pandas 2, data visualization. So now we are to this last topic of this scatter plot. And this data visualization will be over today. So ये unit number 1 खत्म हो जाएगा ये आज. ठीक है? And you look at the downward part. Database is not as bigger as the unit number 1 is. So very less syllabus. Least syllabus is here. And maximum marks, 25 marks are here. Very easy part. This time we have increased the syllabus, but still this is very, very light syllabus in SQL. Clear? And the important thing is the person who finds his or herself weak in the programming side should concentrate on this part. And then we have unit number 3, computer networks, and then the society. So this is what we have in syllabus. So in my last couple of classes, I am randomly removing the persons who are not using the cameras. So the same rule will apply to the today's class also and the rest of the classes also. So let us move to the topic of the days. That is the scatter plot. And before we move to the scatter plot, we will discuss the box plot. So this was the topic that we have discussed yesterday, box plot. And who will say a few words on box plot? Yes, Priyanshi, aap batao beta.
So Priyanshi will not say something here. She will use the past statement, pass. And yes, Muskan 12F. So Muskan is also using the past statement. So let us move to Mr. Harshit. कल थे आप? Yes sir. हाँ बेटा बताओ आप बॉक्स प्लॉट के बारे में, और कैमरा ऑन रखना, मैं पता नहीं कब ये मैं बाहर कर दूंगा क्लास में से। यस करो थोड़ा स्टार्ट बेटा बॉक्स प्लॉट के बारे में, मिस्टर हर्षित। पढ़ के बता दो बेटा वहां से। Sir, box plot is basically a visual representation of I mean to say मतलब एक गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए 5 नंबर समरी को हम बॉक्स प्लॉट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो 5 नंबर्स में आ सकता है एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, एक फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मीडियम। और मीडियम हम निकालेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके वैल्यूज को, और उसकी मिडिल वैल्यू को फाइंड करके हम उसका मीडियन डिसाइड करते हैं। Okay, very good. So your audio quality was not no, as wasn't expected. Like yes. Next, Vanshika. Same question, box plot. सर बॉक्स प्लॉट डाटा विजुअलाइजेशन का एक पार्ट है। ज़्यादातर इसको रिसर्चेस में यूज़ करते हैं। जो बॉक्स प्लॉट होता है उसमें हम फाइव चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज जो स्टार्टिंग लाइन होती है दैट इज़ द मिनिमम वन, जो एंडिंग लाइन है दैट इज़ द मैक्सिमम वन, एंड जो बॉक्स होता है उसमें हम जो बॉक्स होता है उसमें हम 3 वैल्यूज़ को फिर रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, एक मीडियन और थर्ड क्वार्टाइल। जो मीडियन होता है वो पूरा डेटा सेट का मिड पॉइंट होता है। एंड देन ठीक है, थैंक यू वंशिका, फाइन। So now we have 2 discussions on box plot, so I will revise here the things. Box plot में क्या है हमारे पास, that is another visualization tool that we have. One more method is there. So basically here we pick up the 5 number summary. तो 5 number summary में ये हमें क्या बताता है, this is the box plot which is lying in the horizontal form. So this is the first value it represents on the left hand side is the minimum value. This is the maximum value of the box plot. And then it tells about the first quartile, third quartile, as well as the median. So these are the 5 values that are represented on a single box plot. Box plot can be there in the vertical form as well as or in the horizontal form. So it is all up to us that how we want to basically represent. So yesterday we have kept it as in the vertical form. और vertical form में क्या होता है, you see one parameter is there and that parameter, yes, this one, vertical 1 is here for this one, and vertical 0 will be definitely, the reverse part will be for the, किस लिए होगा 0, किस लिए होगा, horizontal representation, horizontal. तो अगर 1 निकला वर्टिकल के लिए तो 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर कुछ इसमें से प्लस माइनस हुआ, सो वी विल लुक एट लास्ट yesterday we have not used this parameter, by default ही वो वर्टिकल था, तो we have not used this parameter. So एक बार इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट इज व्हाट वाज द क्वेश्चन। So this was the question that we tried yesterday. And
This is about the box plot that we have. So box plot, why we use, who are the persons who uses the box plot? ये हमने ये कल डिस्कशन किया था, बॉक्स प्लॉट को यूज कौन करते हैं? रिसर्चर्स. यस, सो रिसर्चर डाटा को एनालाइज करने के लिए दे मेक यूज ऑफ दिस दिस ग्राफ, एंड नाउ यू सी दिस बॉक्स प्लॉट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. और जो अभी हमने एक पैरामीटर यूज किया है, दिस वर्टिकल is equal to 1. So we see that is there any change in the shape? चलो इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं. इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, वर्टिकल 0 से ही आएगा ये. सो वी विल नाउ this time we keep it as vertical equal to 0 and run this one. Now you see that all the box plots are now represented here in the form of horizontal way they are represented. Clear? And just elaborate a bit more on this. ये हमने कल प्रोग्राम किया था. तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास 4 different data sets हैं. Value 1 is a variable that is holding the one data set. Value 2 is a variable that is holding the second data set. Value 3 is a variable holding the third data set, and similarly fourth data set. So we have basically assigned all these 4 different data sets with the help of a list to a new variable, and the name of the variable is box underscore plot underscore data. So this variable contains all the 4 data sets. Then we have made use of this box plot method. तो ये box plot method से हम क्या करेंगे, ये box plot को draw करेंगे. ठीक है? So let us इसको थोड़ा try करते हैं. Again we make a try today so that now the few people missed this class, and so that they can. Clear? So this is the data that we have. So box plot method we will use to make a box plot. So here we will pass the parameter box underscore plot underscore data. So you just run this code, and with this code so there is a spelling mistake in box plot. Okay. Clear? So now you can see that box plot is here. Now yes, हर्षित बेटा आप बताना, अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहता हूँ, लेबल बनाना चाहता हूँ इसके अंदर. आई वांट टू पुट द लेबल्स हियर. यहाँ पे मैं लेबल चाहता हूँ, वैल्यू 1 आ जाए, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाए, यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाए, यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? For that we will use label command. Yes. तो उसके लिए क्या हम लेबल पैरामीटर का यूज करेंगे. कमांड नहीं है बेटा, कमांड ना बोलना. दिस इज पैरामीटर लेबल्स इज इक्वल टू let us say first we have value 1, then I want to place value 2, then I want to place value 3, and then I want to go with the value 4 label. So just run this one, and now see the labels are placed. Clear? In the chart. Now I next task is that I want to color this one. So color के लिए, yes, who will tell me about the color? How to color the box plot? Patch artist. हाँ जी, क्या था? We use a parameter called patch artist. Yes, so Harshit is in good form.
So that parameter was here. इसमें कलर पैरामीटर नहीं है. Patch artist equal to, by default इसकी वैल्यू false है. We will make it true. Just run this one, and now you see that it has been color. अब इसके बाद अगला टास्क था हमारे पास, that is इसको how to give the different colors to different boxes. So before we go into the different boxes, ये अब डाटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये भी तो देखना है हमें, ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बॉक्सेस हमने बना दिए और बाद में हमें पता ही ना चले कि बॉक्स कर क्या रहे हैं एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द बॉक्सेस. यस हर्षिता, बताओ इन बॉक्सेस के बारे में कुछ. इन बॉक्सेस के अंदर बेसिकली सारी वैल्यू फिट होती है. यार एक हर्षित, और रुक जाओ बेटा, रुक जाओ. मैंने हर्षित के बाद ए भी लगाया, हर्षिता. आई वांट दैट एवरी टाइम आई से हर्षिता एंड यू इंटरवीन ओवर देयर. हाँ जी, यस बेटा, यस हर्षिता. और हर्षिता देखो गायब हो गया वहां से. यस वंशिका, वंशिका विल सी ऑन दिस. Value, so value 1, it represents the first data set. The upper side that is close to the 8, it represents the maximum value. There is a lot of voice disturbances there, so it's better that you keep muted over there. So I will take the responsibility now. And you see here, the most important thing is now we have created the basically this chart, and it's very important that we are able to analyze the properly chart. अगर हम अब चार्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, सो देयर इज नो फन ऑफ मेकिंग द चार्ट. सो वैल्यू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? द वैल्यू 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट बॉक्स, दिस वन, एंड एज यू कैन सी द लेबल इज देयर हियर. अब इसके अंदर मैंने कल भी बताया था कि ये जो लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू. अब आप देखो कि वैल्यू 1 जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यू 1 वेरिएबल है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, यू कैन सी हियर, दिस इज 24, दिस इज 20. Clear? And similarly you can look upon the maximum value, that is 78. So now you can see here that this chart, this line is representing 24, this line is representing 28, and this line is representing the first quartile, this line is representing the third quartile, and this yellow line here, this marks the median. So these are the 5 values which are basically represented on a box plot. Similarly, this box is representing the value 2, clear? The variable value 2 and its values, the data set contained in the value 2 variable. Similarly, we have value 3, and similarly we have value 4. But as we see in the value 4 variable, these two values are there. There 2 dots are there like this. Because आप देखो इसके अंदर क्या है कि value 4 variable के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है, दैट इज दिस इज 10, और उससे बड़ी वैल्यू जो है दैट इज 16. बट ये जो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. मिनिमम वैल्यू को ये वाली डॉट रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी डॉट ये 16 को रिप्रेजेंट कर रही है. सो व्हेन वी हैव टू मच लॉन्ग दिस टाइप, सो देन यू नो ऑटोमेटिकली दिस लाइन is not gone up to this level. It is already basically gets filled with these values. ये इस तरह का चार्ट क्यों बनता है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जब हमारे डाटा के अंदर कुछ आउटलायर होते हैं, तो उस आउटलायर के केस में ये डॉट्स बन जाती हैं. आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट द आउटलायर्स. ये आउटलायर्स क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट आर आउटलायर्स? जैसे लुक एट द डाटा हियर फर्स्ट. इस क्वेश्चन में आप वैल्यू 4 में देखो किस तरह का डाटा पड़ा हो. कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम अज्यूम कर लें कि वैल्यू 4 में ये स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, जिसमें से ये 10 और 16 वाले ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं, ये आउटलायर स्टूडेंट्स हैं. व्हाई दे आर आउटलायर स्टूडेंट्स? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर डाटा वी एनालाइज दैट सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं. देखो अगर हम ये दो बच्चों को माइनस कर दें तो मिनिमम मार्क्स 61 है एंड मैक्सिमम मार्क्स 99 है. तो इट मींस कि इनका क्या है,
जो 10 में से 2 बच्चे माइनस करके 8 बच्चों का स्कोर जो है वो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में है सभी का, 60% से अबव ही है सभी के मार्क्स। बट ये जो 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे आउटलायर हैं। तो आउटलायर का क्या मीनिंग हुआ? वो डाटा विच इज एक्सेप्शनल सॉर्ट ऑफ ए डाटा विच इज नो उस ग्रुप से क्या है बाहर चला जाता है, जो नॉर्मल ग्रुप है उससे बाहर चले गए। ये 2 बच्चे जो हैं नॉर्मल ग्रुप से बाहर चले गए हैं। सो दैट्स वाई इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये डॉट का यूज किया हुआ है यहाँ पे। एंड वी से दिस सॉर्ट ऑफ डाटा इज कॉल्ड द आउटलायर डाटा। ठीक है, अभी हमारा बॉक्स प्लॉट में एक काम और रह गया। व्हाट इज दैट टास्क इज? कौन सा टास्क रह गया अभी हमारे पास? To give different colors to the boxes. yes to give different colors. अब डिफरेंट कलर के लिए आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड। वी हैव जस्ट 2 लाइंस ऑफ कोड इज देयर लाइक दिस वन। एक तो कलर्स देने हैं, कलर्स का नाम एक लिस्ट के अंदर हमने सभी बॉक्सेस के लिए कलर का नाम डिसाइड कर लिया और एक हमने लूप रन कर। सो यू सी हाउ द coloring is done here. Why coloring is done like this here? Because there is no color parameter in the box plot method. ठीक है जी, तो ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया कलर, जिसके अंदर 4 कलर के नाम डाल दिए। और ये बॉक्स क्या चीज है? यस, जिसने कल क्लास लगाई थी, ये बॉक्स क्या था वहां पे? ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? यहाँ ये हमारे पास एक वेरिएबल था बॉक्स, जिसके अंदर ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट होके आ रही हैं, ऑल दोज वैल्यूज आर असाइंड टू ए वेरिएबल एंड द नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज बॉक्स। अब मैंने ये जो लूप चलाई है, इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, दिस इज पैच एंड कलर। एंड पैच एंड कलर दे आर बेसिकली द बिल्ट इन पैरामीटर्स। ये जिप मेथड के बिल्ट इन पैरामीटर हैं। पैच मैंने आपको बताया था, पैच किस लिए होता है? ये जो बॉक्स है इसको कलर करने के लिए जो पैरामीटर है दैट इज पैच। और जो भी कलर हमने करना है, जैसे ये फर्स्ट कलर है, तो ये कलर मैंने जब करना है तो आई विल यूज हेयर दी सेकंड पैरामीटर दैट इज द कलर। तो कलर पैरामीटर से मैं कलरिंग करूंगा और पैच से मैं बॉक्स को पैच कर दूंगा। लाइक यू नो द पैचिंग, हाउ द पैचिंग इज डन एट होम, यू नो हाउ टू कलरिंग करने के लिए पैचिंग करते हैं हम अपने घर के अंदर। नाउ वी हैव दिस जिप पैरामीटर, जिप फंक्शन है। जिप फंक्शन के अंदर 2 चीजें आ गई। ये बॉक्स जो पैरामीटर है, बॉक्स पैरामीटर क्या सिलेक्ट करेगा? एक पर्टिकुलर बॉक्स को सिलेक्ट करेगा। नो, वी हैव हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव? वी हैव 1 2 3 4 बॉक्सेस आर देयर। तो बॉक्स पैरामीटर जो है वो बॉक्स को सिलेक्ट करेगा, और कलर पैरामीटर जो है, क्लियर, ये जो कलर्स हैं ये यहां से 1 by 1 कलर सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था कि ये पैच का एक मेथड है सेट फेस कलर। मींस अगर हम इसका कलरिंग करनी है इसको, तो एक और मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, सेट फेस कलर। ये भी बिल्ट इन मेथड है एंड दिस इज द मेथड दैट बिलोंग्स टू पैच। और ये कलर, ये जो फॉर लूप के अंदर ये जो कलर पैरामीटर है, जो भी कलर हम यहां से डालेंगे इसके अंदर, वो कलर उसको उस कलर से वो बॉक्स को वो क्या कर देगा? पैचिंग कर देगा। सो लेट अस रन दिस and now you can see that the color has been changed according to the colors that we have mentioned. और अगर हम इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन दी हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वर्ट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। वर्ट इक्वल टू 0 करने से you will be able to find the boxes in the horizon. So this is all that we have covered in the last class. So the persons who will be able to run all the different combinations of the function, so he will be having a very effective learning. And the person who will just come into the class and see how the program is functioning
and then he will not basically reinforce the learning, then he will be in trouble. So this is what we have with regard to the box plot. Now let's move to the next program of the days, that is the scatter plot. And with this one, the unit number one will get to the closing. So yes, वंशिका बेटा पढ़ना इसको, अगर पीछे वॉइस नहीं है तो ट्राई करो, आप ट्राई करो, अदरवाइज आई विल स्टॉप इट. करो शाबाश. Scatter plot is a two-dimensional data visualization that uses the dot. वंशिका रेस्ट करो. We have in the pipeline. या श्रिया आप पढ़ो बेटा. Scatter plots. A scatter plot is a two-dimensional data visualization that uses dots to represent the values obtained for two different variables, one plotted along x-axis and the other plotted along y-axis. तो scatter plot is a very easy sort of a method is, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो जैसे वेट को आप मान लो वेट इज देयर ऑन द एक्स एक्सिस और हाइट इज देयर ऑन द वाई एक्सिस. तो जब मैंने इसको प्लॉट करना है तो कैसे करना है, जैसे ये फर्स्ट फिगर है 93.3, सो दिस विल बी 90 एंड 93.3 हियर, और वेट कितना है मेरे पास 100 एंड हाइट इज 116, so this will be 116 and this point will be plotted on the chart. Then we have this second value is 67. You see 67 will be round about here, and its corresponding value is 110.7. So you will find 110.7 like. Similarly, you pick up the next value is 62.3. This is 62.3 about here. And then the third value here is 124.8. So this will be 124.8. Clear? So scatter plot means that we have two variables. This is the first variable on the x-axis. The second variable will be there on the y-axis. And automatically these points will be represented on the graph. So this is the way of representation is. Already we have used two variable charts, like we have line chart, we have bar chart, we have histogram. And similarly, we have this one is scatter plot. Clear? So let us try to represent this data. So let's start a new program. So as you have seen in the ये practical में आपने देखा था, I showed you the practical, ये जो list of practical programs थे. Yes. So these list of programs I will give you as a homework also. एक एक program को आप try करना, ठीक है? And few more questions will be there in the for your summer break. So visualization तक हमारे 16 प्रोग्राम कवर हो गए हैं. तो इन प्रोग्राम्स को आप ट्राई करना. जो अगर कोई प्रोग्राम आपसे नहीं होगा, so we'll be able to try to run these programs after your summer break, whenever your summer break starts. सर प्रैक्टिकल फाइल में सेम प्रोग्राम से प्रूव करने. हाँ जी, जो प्रैक्टिकल फाइल हम बनाएंगे उसमें सिर्फ यही 26 प्रोग्राम से प्रूव हाँ करने. 26 नहीं है, कितने हैं ये? 26 है सर. 26. यस, एक नीचे भी है, 27 भी है. हाँ देखो, एक्चुअली प्रैक्टिकल फाइल में कहता है, प्रैक्टिकल फाइल में बेयर मिनिमम इतने ये 26 तो होने चाहिए, प्लस इफ यू वांट टू इंक्लूड द एडिशनल प्रोग्राम दैट इज, बट ये मिनिमम है. दिस इज द मिनिमम. These 26 programs should be definitely there on your practical file for the final exam. Okay. So let's move to the question, और इस क्वेश्चन का नाम हम रख देते हैं पहले ही. The program name is scatter plot. हमेशा अपने प्रोग्राम को प्रॉपरली सेव किया करो, so that you later on you are able to access that program also in your Jupyter notebook. So first we are going to have the weight,
और वेट है हमारे पास 93.3। So this is the weight we have, and then the corresponding height. One, two, one. Last value is 1. So these are the weights that we have, and then is the function itself. So PLT dot we have scatter is the function, and the first parameter is weight on the x-axis, height on the y-axis, and then we have marker equal to O. So just run this one. ये मार्कर किस लिए है? You will get the clarity very now this. ये मार्कर पैरामीटर किस लिए? ठीक है, अगर आपको सर्कल चाहिए तो आप यहाँ पे O लिखोगे, अगर आपको V चाहिए तो यू रन दिस। तो ये सर्कल की जगह क्या है? ये VC बन के आ जाएगी। अगर आपको इसकी जगह ये डैश है, ये तो है ही नहीं, अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर भी। तो अगर आपको ये ओ ही रखते हैं हम, ये स्मॉल ओ, तो मेक इट ये सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, सिंपल ही है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 93 ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? दिस इज दी नो 170 से अबाउट ये वाली फोर्थ वैल्यू 1 2 3 एंड 4। क्लियर? और वैसे आप यहाँ से ले लो 1 2 3 एंड 4, ये कौन सी है वैल्यू? 43। सो 43 विल बी, ये यहां से ले रहा है 43, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 170.6। हमें नहीं बहुत ज्यादा जरूरत है देखने की 43 कहां पे है, दैट इज ऑटोमेटिकली सेट हियर, फाइन। और ये बिल्कुल सही ड्रॉ होगा, इसमें हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू। आप यहां से कोई भी वैल्यू आप चेंज करो, जैसे इस लास्ट वैल्यू को चेंज करते हैं यहाँ, तो वेट हम चेंज करते हैं 88 कर देते हैं लास्ट पे, और हाइट हम रख देते हैं 170 कर देते हैं। सो यू जस्ट सी, ठीक है, ये देखो अब नई वैल्यू आ गई है, ये 88 कहाँ पे है? सो you see here 88 will be around about here, or 170 is here. So we are not concerned, we should not be too much concerned because computer does the calculations on the right way. एक और इसके अंदर जो पैरामीटर है दैट इज फॉर कलर कोडिंग। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो उसके लिए है पैरामीटर C स्टैंड्स फॉर कलर, एंड जो कलर आपने देना है लाइक दिस G इज फॉर ग्रीन कलर। यू सी दिस कलर ऑफ द सर्कल हैज गॉन ऑन द ग्रीन। अगर आपने कोई रेड करना है तो R कर लो, रेड स्टैंड्स फॉर दिस वन। सो नाउ यू फाइंड दिस कलर, ठीक है जी। और बाकी हमारे पास क्या है, एक कस्टमाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं एक्स लेबल। तो एक्स लेबल पे हम मेंशन कर देते हैं दैट इज दी, क्या था हमारे पास, वेट। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं हाइट, ठीक है जी। फिर हमारे चार्ट में होता था टाइटल।
So title is weight and height. Okay, so these are the way you can do the customization here. So we'll look at कोई और पैरामीटर तो नहीं हमारा मिस हो गया कोई customization. So this was the chart and ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट कवर्ड ही है। एक और हमारे पास ये पॉइंट रह गया, दैट इज हाउ टू सेव द चार्ट। किसी भी तरह के चार्ट को हमने सेव करना है, सो दैट इज सेव फिग है, उसके लिए जो फंक्शन है हमारे पास plt डॉट plt is the package save fig, and wherever you want to save that one, let's say on the E drive, and let's say I keep it as scatter and save it as PDF. So now this time it is taking a bit more time. Clear? And if there will be some error, so you will find the error after this code, and if it is working successfully, so if this is working successfully, we have to go to the D drive, and let's say we move to this one and this E drive. So तो E drive में देखो ये स्कैटर नाम से फाइल बन गई है, तो इसको राइट क्लिक करके आप खोल के देख लो, and this is the way to save your PDF से सेव कर लो, JPG से सेव कर लो, PNG से सेव कर लो. So this is all up to you, that you have to decide that आपको किस वे से वो चार्ट चाहिए. So here you will find that this chart will open here. Yes. So this scatter, the file name is scatter, and you are able to see that this is the PDF that I have generated and it is shown. देखो इसके अंदर क्या है, लास्ट के अंदर there is a few important parameters are discussed. ठीक है, जैसे ये क्या है कि आप इसको एज ए PDF भी सेव कर सकते हो, एज ए JPG भी यूज कर सकते हो, इसको एज ए PNG भी सेव कर सकते हो. ठीक है, फिर इसकी उसने एक्सप्लेनेशन बताई हुई है. बस एक मैकेनिज्म होता है वेक्टर बेस्ड होता है, जिसमें ये PDF आ जाएगी ओवर दी. एक बिट मैप मैकेनिज्म होता है. जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, किसी ने कोरल ड्रॉ का नाम सुना है? कोरल ड्रॉ का, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप में से किसी ने नाम सुना है? एडोब फोटोशॉप ही सुना है. ऐसा कोई बताएगा इसके बारे में, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप के बारे में? सो नो वन इज. देखो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं, कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप, दे आर यूज्ड फॉर ग्राफिक्स के लिए यूज होते हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर. इनमें से एक सॉफ्टवेयर जो है दैट इज वेक्टर बेस्ड है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो बिट मैप बेस्ड. सो आई थिंक दिस इज नॉट द डिटेल दैट वी शुड गो इनटू. ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं ये ग्राफिक्स ड्रा करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, सो इन द लास्ट स्लाइड इट इज रिटन दैट विच एक्सपोर्ट फॉर्मेट टू यूज. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें PDF चाहिए, JPG चाहिए, हमें तो जस्ट उसका प्रिंट ही चाहिए उस फिगर का. सो वी शुड नॉट बी टू मच कंसर्न्ड अबाउट दिस वेक्टर बेस्ड एंड दिस बिट मैप बेस्ड. मैंने आपको बता दिया
कि ये जो दो सॉफ्टवेयर है इनमें से एक सॉफ्टवेयर वेक्टर बेस्ड है, एक जो सॉफ्टवेयर है दैट इज बिटमैप बेस्ड होता है। ठीक है, तो with this we came to end with the data visualization. All the topics of the data visualization are over now. Clear? And if you have any query, so you can ask. Yes, किसी का कोई क्वेश्चन है? So only one student is left. Yes. So this is 100% camera ready class we have now. Yes, किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है? And so that we can, or otherwise we will wind up the class. ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने प्रोग्राम हमने डिस्कस किए हैं उसकी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज नो यू विल बी लर्निंग वेरी फास्ट एंड यू विल बी नो क्लियरिंग ऑल द कंसेप्ट्स। सो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको प्रैक्टिस करते हो या you just wait and see. So अब आप लोगों के ऊपर है, that is how you want to gain from the topics that we have got. So now 30 marks syllabus is over. It means that out of 70, 30 marks, तो बहुत ज्यादा सिलेबस हमारा कवर हो गया है। 70 थ्योरी के लिए अब हमारे पास अब 40 मार्क्स का सिलेबस बचा हुआ है, जिसमें 25% MySQL है, and MySQL I can finish it in within 2 days also, because we have worked a lot in the grade 11 also. So that is the best area where we are now. Our whole of the class is on the very ठीक है, तो हमारा टास्क होना चाहिए that is at the end that we are in a very good shape. In the next couple of months our syllabus will be over and you can exclusively focus on your project also. ठीक है, and no, बाकी तो हमारी एक्सपेरिमेंटेशन है कि जितना हमारा लेवल जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, so we can look up some hard questions also. और आप लोगों की साइड से कोई क्वेश्चन है? मैंने बोला था आपसे कि एक जबरदस्ती एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया करो क्लास के अंदर, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.